چنیوٹ میں گھر سے لاپتہ 7 سالہ بچی کی لاش برآمد، علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس کے مطابق بچی 3 روز قبل لاپتہ ہوئی تھی۔ لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ واقعے کے بعد اہل خانہ اور علاقہ مکینم میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ رستم کے علاقہ سرخ ڈھیری میں 2 چنگچی رکشوں کے درمیان تصادم، حادثے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ کاہنہ کے علاقے گجومتا میں ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 30 سالہ رضوان کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ٹیمز نے لاش کو نکال کر ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا۔ لیاقت پور میں خونی رشتہ صفاق بن گیا۔ معمولی تنازع پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ شہداد کوٹ میں ایف آئی اے کی کارروائی، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں غیر قانونی کٹوتی کرنے والے 2 ملزمان دھر لیے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملزمان میں ڈیوائس ہولڈر ساجد اور ایجنٹ غلام مصطفیٰ شامل ہیں، جن سے نقدی، شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات برآمد کر لی گئیں۔ ملزمان کو ایف آئی اے اور دیگر لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ نگر پارکر کے ایک گاؤں میں 32 سالہ شخص کی مبینہ خودکشی، پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت اکرم کے نام سے ہوئی۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے مزید تفتیش جاری۔ فیصل آباد میں رمضان المبارک کے دوران فوڈ سیفٹی ٹیمز کا بڑا آپریشن، 13 فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مار کر 6,97,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ کارروائی کے دوران معروف سویٹس یونٹ اور پکوان سینٹر بند کر دیے گئے، جبکہ 1400 کلو آٹا، 625 کلو کارن فلور اور 2400 کلو چینی سمیت بھاری مقدار میں پیکنگ میٹیریل ضبط کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق غیر معیاری اجزاء استعمال کرنے اور بغیر لائسنس کاروبار پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اور پتوکی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، مردہ جانور کا گوشت فروخت کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور موقع پر گوشت تلف کر دیا، جبکہ گوشت سپلائی کرنے والا لوڈر رکشہ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ To the office of the governor belonging or appertaining. I do hereby authorize, empower and require you to exercise and perform all and singular the powers and duties appertaining to the said office. I do hereby further direct that before assuming the said office, you shall make an oath before the Chief Justice of the High Court of Sindh in the form hereto appended before you enter upon your office as governor. And I do hereby further direct that this commission shall be read and published before you have made the oath as required by this commission. And I do hereby direct that as soon as you have taken the oath required by this commission and have entered upon the duties of your office, this commission shall supersede any previous commission of appointment of a governor of the province of Sindh, given under the hand and seal of the President of the Islamic Republic of Pakistan. Thank you. Ladies and gentlemen, now I'll request Honorable Justice Zafar Ahmad Rajput, Chief Justice Sindh High Court, to administer the oath to Syed Mohammad Nihal Hashmi as Governor of Sindh. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. میں سید محمد نہال ہاشمی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ
میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ بحیثیت گورنر صوبہ سندھ میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ کہ میں بحیثیت گورنر سندھ میں اپنے فرائض کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی، خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اپنے ذاتی مقاصد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے نہیں دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت، بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا اور یہ کہ کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا اور نہ اس پر ظاہر کروں گا جو بحیثیت گورنر صوبہ سندھ میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا اور نہ اس پر ظاہر کروں گا جو بحیثیت گورنر سندھ میرے سامنے صوبہ سندھ میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جب کہ بحیثیت گورنر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا میرے علم میں لایا جائے گا بجز کما حقہ بحیثیت گورنر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے نئے گورنر سندھ سے ان کے عہدے کا حلف لیا ہے سید السلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اور میں ہوں نصحت نور۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں گھر سے لاپتہ ہونے والی 7 سالہ بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد بچی کی تدفین کر دی۔ 7 سالہ مریم 3 روز قبل گھر سے لاپتہ ہوئی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں چنیوٹ سے، جہاں پر گھر سے لاپتہ ہونے والی 7 سالہ بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد بچی کی تدفین کر دی۔ 7 سالہ مریم 3 روز قبل گھر سے لاپتہ ہوئی تھی۔ اسی پر مزید بات کر لیں گے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف چنیوٹ علی رضا نے۔ علی رضا، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، بتائیے گا۔ انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش ہے۔ 7 سالہ مریم 3 روز قبل سے لاپتہ ہوئی تھی، جس کی لاش آج گھر کے پاس مقامی ڈھیر سے برآمد ہوئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ضروری کارروائی کے بعد بچی کی تدفین کر دی گئی اور مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ جی، کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ علی رضا ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وہاں رستم کے علاقہ سرخ ڈھیری میں 2 چنگچی رکشوں کے آپس میں تصادم کے نتیجہ میں ایک خاتون جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور میڈیکل ٹیم اور ایمبولینس موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ ادھر کہنا کے علاقے گجومتا میں ٹریفک حادثے میں ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت 30 سالہ رضوان کے نام سے ہوئی۔ اطلاع ملنے پر مقامی افراد اور ریسکیو ٹیمز موقع پر پہنچ گئیں اور لاش کو تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
लियाकतपुर में खून सफेद हो गया, जहां मामूली तनाज़े पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। लियाकतपुर के इलाका थाना तिरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बड़े भाई ने नामालूम वजूहात की बिना पर सोए हुए छोटे भाई को कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक मुलजिम अजमल ने अपने भाई जावेद के सर पर लोहे का राड मारा, जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। शहदाद कोट में FIA लाडकाना ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक खवातीन की रकम में गैर कानूनी कटौती करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में डिवाइस होल्डर साजिद और एजेंट गुलाम मुस्तफा शामिल हैं। FIA हुकाम ने मुलजिमान ने मुस्तहिक खवातीन के शनाख्ती कार्ड, डिवाइस, 1 लाख रुपए नकदी और दीगर कागजात बरामद कर लिए हैं। मुलजिमान को FIA दफ्तर लाडकाना मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान मुस्तहिक खवातीन से फीकस 1000 रुपए की कटौती कर रहे थे और अवामी शिकायत पर कार्रवाई की गई। नंगर पारकर के गांव में 32 साला शख्स ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और खुदकुशी करने वाले शख्स की शनाख्त अकरम वल्द कादिर बख्श के नाम से की गई है। लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। नासिन घारू में गुज़िश्ता रोज बेदर्दी से कत्ल होने वाली कराची की रिहायशी लड़की के कत्ल केस में मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के जुर्म के एतराफ के बाद मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं हक नवाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। धाबेजी पुलिस के SHO मुबीन पड़ियाल ने तकनीकी टीम की मदद से कत्ल का सुराग लगाते हुए मकतूला के मंगेतर राजेश कुमार को धाबेजी पंप हाउस घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम राजेश कुमार ने कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि चीतना के साथ इसकी मंगनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद चीतना ने किसी और मर्द के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए थे और वो इससे नफरत करने लग गई थी। इस बात पर गुस्से में आकर इसने चीतना को धोखे से कराची बुलाकर घुमाने के बहाने गुज़िश्ता रात फिल्टर प्लांट की पहाड़ी इलाके में पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। SHO के मुताबिक इस मुकदमे की मजीद तफ्तीश जारी है। हकनवाज चांडियो, TV टुडे, घारो। हरिपुर में थाना खानपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मीर अफजल कत्ल केस में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना खानपुर की हदूद में शहरी मीर अफजल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। SHO थाना खानपुर एजाज अली ने तफ्तीशी टीम और दीगर नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए वाकये में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश अभी जारी है। चीचावतनी के मेहराबाद में जायदाद की नापाक हवस ने एक शख्स की जान के लिए खतरा पैदा कर दिया। मलिक शादा, जो अपने भाई के घर मेहराबाद में मुकीम था, मुबैना तौर पर अपनी भाभी और उसके बेटों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने एक शख्स की टांग तोड़ी, सर के बाल मंडवाए और मूछें भी मंडवाने की अजियतनाक कार्रवाई की वीडियो भी बनाई है। अहले मोहल्ला ने मौका पर पहुंचकर इसे बचाया और सिविल अस्पताल चीचावतनी में दाखिल कराया। मुतासरा शख्स ने पुलिस से मुतालिबा किया है कि मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ओकाड़ा में थाना सदर की हदूद में राइस मिल्स पर डकैती की बड़ी वारदात हुई है, जिसमें डाकुओं ने 70 लाख रुपए के सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। डाकुओं ने ट्रांसफार्मर, कीमती मोटरें, बॉयलर का कीमती सामान और हजारों रुपए नकदी लेकर गाड़ी में फरार हासिल किया। राइस मिल के मालिक के मुताबिक डाकुओं ने CCTV कैमरास और GVR को भी तोड़ दिया। वाकये की इत्तला मिलने पर थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंची और कार्रवाई का आगाज कर दिया। भक्कर में वजीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी ब्राय फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा बट ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा रमजान सहूलत बाजार का दौरा किया। मुआवने खसूसी सलमा बट ने रमजान सहूलत बाजार के मुख्तलिफ स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया और खरीदारों से सस्ते निरखों पर अशिया जरूरियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने रमजान सहूलत बाजार को शहरियों के लिए मार्केट रिलीफ का अहम जरिया करार दिया। इस मौका पर उन्होंने ओपन मार्केट का भी दौरा किया है। अशिया खुरनोश की कीमतों के बारे में सार्फिन से मालूमात हासिल की।
उधर पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में तालीमी निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि शफाफ और मौसर इम्तिहानी निज़ाम को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ग्रेड 8 के इम्तहानात पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन एंड टेक्स्ट बुक असेसमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मुनज़्ज़म अंदाज में जारी हैं और ये पाकिस्तान के पहले AI से मुआवनत याफ्ता मुकम्मल तौर पर मशीन मार्क्ड और QR कोड के जरिए काबिल ट्रेस इम्तहानात हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कॉलोनी एरिया और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कॉलोनी एरिया में कायम इम्तिहानी मराकज के दौरे के मौका पर किया। इस दौरान उन्होंने इम्तिहानी कमरों, सिक्योरिटी इंतजामात, हाजिरी के निज़ाम और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा भी लिया। और नाज़रीन, फैसलाबाद में रमज़ानुल मुबारक के दौरान खुराक की तैयारी से लेकर तरसील तक कड़ी निगरानी जारी है। कार्रवाई के दौरान 13 फूड पॉइंट्स पर 6,97,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि मारूफ स्वीट्स यूनिट्स और पकवान सेंटर बंद कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करेंगे, स्वीट्स यूनिट्स और पकवान सेंटर बंद कर दिए गए हैं। 1400 किलो आटा, 625 किलो कॉर्नफ्लोर, 2400 किलो चीनी और कसीरुल मिकदार पैकिंग मटीरियल भी जब्त किया गया है। आपको अपडेट करेंगे फैसलाबाद से। रमज़ानुल मुबारक के दौरान खुराक की तैयारी से लेकर तरसील तक कड़ी निगरानी जारी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फरूख नकवी ने। जी फरूख, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? फैसलाबाद लाहौर रोड, कलीम शहीद रोड और गुलाम हमदाबाद, नड़वलाडा, मदीना टाउन और जनावाला रोड पर क्रैकडाउन जारी है। रमजानुल मुबारक में पकवान तैयार करने वाले फूड हैंडल्स में भी फूड सेफ्टी किट्स तस्लीम किए गए। बगैर लाइसेंस खुराक का कारोबार करने वाले और ममनुआ अज्जा के इस्तेमाल और स्वीट्स यूनिट बंद किया गया और खाने की तैयारी में जायदुल मियाद अज्जा के इस्तेमाल पर पकवान सेंटर को बंद कर दिया गया। किचन एरिया में कीड़े मकोड़ों और मकड़ी वगैरह के जानों की बरसात पाई गई। PIB फूड अथॉरिटी ने कहा है कि लाजिम रिकॉर्ड मुलाजिम के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ब्यूरो चीफ फरूख नकवी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। पतोकी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्दा जानवर का गोश्त फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है और भारी मिकदार में मुसरे सहित गोश्त बरामद कर लिया। वेटरनरी डॉक्टर ने मुआयने के बाद गोश्त को इंसानी खुराक के लिए मुसरे सहित करार दिया है। आपको अपडेट दे रहे हैं पतोकी से, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्दा जानवर का गोश्त फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बना दिया और भारी मिकदार में मुसरे सहित गोश्त बरामद कर लिया। वेटरनरी डॉक्टर ने मुआयने के बाद गोश्त को इंसानी खुराक के लिए मुसर करार दे दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है शाहिद चौधरी ने। शाहिद चौधरी, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई मल्लांवाला बाईपास पर जो मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त करने वाली की कोशिश नाकाम बना दी गई है। महकमा फूड और सेफ्टी टीम और सिटी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लोडर रक्षा से तकरीबन 140 किलोग्राम मुर्दा जानवर का गोश्त बरामद कर लिया। डॉक्टर मोहम्मद रजवान के मुआयने के बाद गोश्त को इंसानी खुराक के लिए मुजर करार दिया गया और गोश्त को फौरी तौर पर ज़ाया कर दिया गया। रक्षा कब्जे में लेकर मुलजमान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्ट 2016 दफा 20 और 23 के तहत कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। शाहिद चौधरी हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वहां डीजी खान में अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जिले इंतजामिया ने बड़ा क्रैकडाउन करते हुए एक गोदाम से भारी मिकदार में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स बरामद कर ली, जबकि गैर कानूनी गैस रिफिलिंग और महंगे दामों मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान एक मुर्गी फरोश को भी गिरफ्तार किया गया जो सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए गोश्त महंगे दामों फरोख्त कर रहा था। जिला इंतजामिया ने गोदाम को फौरी तौर पर सील कर दिया, जबकि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर अवामी शिकायत के बाद ओवर चार्जिंग करने वाले माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया गया है। तफसीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि निजायज मुनाफाखोरी और गैर कानूनी तौर पर LPG की रीफिलिंग और ओवर चार्जिंग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मौजा 17 SP में
LPG ਗੈਸ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ के खिलाफ की गई कार्रवाई के हवाले से किया। LPG ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੈਸ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 213 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਰੇਟ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, DC ਪਾਕਪਤਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रबदीनू मेट्रो सिविल डिफेंस ऑफिसर अदनान कैसर के हमरा कार्रवाई करते हुए ओवर चार्जिंग की शिकायत दुरुस्त साबित होने पर LPG गैस रीफिलिंग प्लांट को सील कर दिया। इस मौका पर महकमा सिविल डिफेंस का अमला भी मौजूद था, जिसने शिकायत की जांच पड़ताल के बाद ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। इंतजामिया ने मौका पर प्लांट को सील करते हुए मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़्यादा लोगों को लूट रहे हैं, जबकि 250 से भी ज्यादा रेट नहीं है, तो ये 400 से प्लस ले रहे हैं, तो ये कौन सी इंसानियत है? ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बुरी तरह डैमेज किया और इस्लाम का नाम भी डुबोया। हम अली परवेज मिनिस्टर से, वजीर आला से, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर साहब से सबसे गुजारिश करेंगे प्लांटों वालों को भी सील किया जाए। साथ ये प्लांटों वालों जिन्होंने महंगा किया, जिन्होंने रातों रात अमीर होने का शौक में वो हमको की छुरी फेर दी गले पे। शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि शहरियों का एहसास करने वाले अनासर के साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी और ओवर चार्जिंग या गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। उन्होंने मुतलका अफसरान को हदायत की कि अवामी शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, वहाँ मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि LPG की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक उसामा से। मुजफ्फरगढ़ में भी सुई गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना सहरी और रफ्तारी के टाइम सुई गैस मैसर नहीं होती। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात का सामना है। जी, मुजफ्फरगढ़ में जो गैस का प्रेशर है वो कम है, तो रमजान शरीफ में रोज़ा रखने के लिए जो है लोग परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बिलखसूस जो ईद के 3 दिन आ रहे हैं, ईद में मुकम्मल तौर पर जो है गैस पूरे पाकिस्तान को फराहम की जाए। मेरा मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से और इंतज़ामिया जो सुई गैस है, चेयरमैन सुई गैस से, कि फौरी तौर पर ईद के दिनों के लिए फौरी जो है इकदामात किए जाए और गैस को जो है फराहम की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, शहरी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी को मुश्किलात का सामना ना हो। नसीराबाद के डेरा मुराद जमाली के रिहायशियों ने मुबैना हमले के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंसाफ का मुतालिबा किया है। हमले में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें महबूब अली की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरीन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान, IG बलोचिस्तान, DIG नसीराबाद और SSP नसीराबाद से फौरी नोटिस लेकर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। हैदराबाद के इलाका में दरगाह शरीफ में बिजली, पानी और सहूलियात की कमी के बायस मुरीदों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। होस्ट्री के करीब मेन टंडू मोहम्मद खान रोड पर वाक़या दरगाह में 8 महीनों से बिजली और पानी की सहूलियात मौजूद नहीं है। दूर दराज से आने वाले मुरीद परेशान हैं। रात के अंधेरे में चोरी की वारदातें भी मामूल बन गई हैं। मुरीदों ने इंतजामिया और वापटा से अपील की है कि उन्हें बिजली और पानी की मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं ताकि दरगाह के ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दूसरी जानिब खित्ते में मौजूदा कशीदा सूरत हाल और ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तनाजुर में मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकपतन और आरिफवाला में रैलियों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैलियों में अंजुमन ताजरान, अंजुमन आड़तियाँ, नंबरदार इत्तेहाद, सिविल सोसाइटी, NGOs के नुमाइंदान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और पाक फौज के हक में भरपूर नारेबाजी की। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, हमारे सिपाही बहादुर जवान, पाकिस्तान की शान और सरहदों की निगहबान, सीसा पलाई दीवार जैसे नारे लगाए। इस मौका पर शहरियों का जोश और जज्बा दीदनी था और मुकर्ररीन ने कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है और मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को भी तैयार है।
दीपालपुर में ईद की आमद के साथ बाजारों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं और शहरी शॉपिंग में मसरूफ हैं। ताहम बढ़ती महंगाई के बायस खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान नजर आते हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे मियां काशिफ पट्टू से। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी ईद की तैयारियां जारी हैं। माह रमजान का आखिरी अशरा आते ही बाजार की रौनकों दबाला हो जाती हैं। हर तरफ औरतें बच्चे बच्चियां नजर आ रहे हैं शॉपिंग करते हुए। अभी मैं एक जूते की दुकान पर मौजूद हूँ और एक कस्टमर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं वो जूते कितने आए हैं और उन्होंने ईद की क्या क्या शॉपिंग की। वालेकुम सलाम सर, क्या बताएं, शॉपिंग कैसी चल रही है? हर तरफ महंगाई महंगाई नजर आ रही है। जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, ना तो जूते खरीदे जा रहे हैं, ना ही बच्चों के लिए कोई कपड़े खरीद सकते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदारा हम आवाम पर कुछ रहम करे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें, ताकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कम होगी तो दुकानदार भी साझदार है, जो चीज़ें हमें सस्ती देंगे। लिहाजा हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि ईद का मौका है, ईद के मौके पर तो हमें कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल, कस्टमर का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ईद के मौके पर इस चीज़ का नोटिस ले और पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाए, जिससे गरीब बंदा भी खुशहाल हो सके और अपने बच्चों के लिए जूते कपड़े और बच्चों के लिए अपना चीज़ें खरीद सके और गरीब आदमी को अच्छे तरीके से रिलीफ मिल सके। जी दूसरी जानिब ईद उल फितर की आमद करीब आते ही हरुनाबाद के बाजारों में रश बढ़ गया है। ताहम दर्जी हजरात ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। हरुनाबाद से रिपोर्ट करेंगे अरशद अली गौरी। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में दर्जियों की दुकानों पर शहरियों का रश तो नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर दर्जियों ने आर्डर बुक बंद कर दी है। कई दर्जियों का कहना है कि काम पहले ही बहुत ज्यादा है, इसलिए नए कपड़े वक्त पर तैयार करना मुमकिन नहीं। दूसरी जानब जो दर्जी आर्डर ले रहे हैं वो सिलाई के रेट्स में नुमाया इजाफा कर चुके हैं, जिस पर शहरियों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। हम ईद के कपड़े सिलवाने आए हैं, मगर दर्जी साफ इनकार कर रहे हैं कि आप आर्डर नहीं लेंगे। अगर ले भी रहे हैं तो रेट बहुत ज्यादा बता रहे हैं। हमें मजबूरन रेडीमेड कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं, क्योंकि ना तो दर्जी ऑर्डर ले रहे हैं और ना ही मुनासिब कीमत पर सिलाई कर रहे हैं। जी, महंगाई की वजह से सिलाई के अखराजात भी बढ़ गए हैं, इसीलिए रेट्स में इजाफा करना पड़ रहा है और ये हमारी मजबूरी है। ईद करीब आते ही काम बहुत बढ़ जाता है। हमारे पास पहले इतने आर्डर मौजूद है कि मजीद कपड़े लेना मुश्किल हो जाता है। शहरियों का कहना है कि ईद खुशियों का त्योहार है, लेकिन महंगाई और दर्जियों के बढ़ते हुए रेट्स ने इनकी खुशियों को मुतासर कर दिया है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि दर्जी हजरात मुनासिब रेट्स रखें और आखिरी दिनों में भी अवाम को सहूलत फराहम करें, ताकि हर कोई ईद की खुशियों में नए कपड़ों के साथ शरीक हो सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुनाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब कमालिया में रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे में भी फल, फ्रूट और सब्जियों की कीमतें कम न हो सकी। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सहर और इफ्तार का इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सी की तहसील कमालिया में। तहसील कमालिया में रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे में सब्जी, फल, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दो नोश की खरीदो फरोख्त के लिए शहरी बाजार का रुख कर रहे हैं। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, खरबूजा 150 रुपए किलो सी, 200 रुपये बेच रहे हैं जी। खजूर जी 400 रुपये किलो सी, वो 450 रुपए 480 रुपए कर दी है जी। उस तो इलावा अमरूद जोड़ा है वो 150 रुपये किलो से जी, 200-250 रुपये किलो कर दिता है। सब्जियां के रेटा भी इजाफा कर दिता गया। जोड़ा 100 रुपये का घी का पैकेट सी पाइए का जी, वो कोई कुछ दुकानदार ऐसे ने कि 130 रुपये का 35 रुपये का दे रहे हैं, कुछ दुकानदार 110-100 रुपये का दे रहे हैं। लिहाजा साडी कमालिया इंतजामिया दे नाल खासन खास अपील हैगी है कि इस गल का फौरी नोटिस लिया जाए, ताकि जेडे गरीब कमालिया के गरीब आवाम है जी उहदे वास्ते रिलीफ दी जाए। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी से नोटिस लेने का मुतालबा के फिल फॉर रेड कंट्रोल टीमें तश्कील दी जाएं, ताकि रेड कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद, बॉक्सर, टीवी टुडे न्यूज, कमालिया। वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, ओकाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई से मुताल्लिक आगाही मुहिम जारी है, जिसके दौरान दुकानदारों और शहरियों को सफाई बरकरार रखने की हिदायत दी जा रही है। मुहिम के दौरान मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ में अफसरान और अमला दुकानदारों को सफाई सुथराई के हवाले से आगाही फ्राहम कर रहे हैं। दुकानदारों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने कारोबारी मुकामात के सामने सफाई का खास ख्याल रखें और कूड़ा करकट मुकर्ररा मुकामात पर डालें ताकि शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिल सके। हैदराबाद में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात के नए इम्तिहानी निज़ाम और ई मार्किंग सिस्टम से मुतालिक एक रोज़ा आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काउंसिल के ज़ेरे तमाम और तालीमी बोर्ड हैदराबाद के इश्तराक से मुनक्ता वर्कशॉप में हैदराबाद डिवीजन के निजी स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स और मालिकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर SPIC के वाइस चेयरमैन हसन मुर्तजा अंसारी और डिवीजनल सदर ने खिताब किया। कहा कि जदीद इम्तिहानी निज़ाम और ई मार्किंग शफाफियत और मेरिट के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। हसन अब्दाल में सियासी और समाजी शख्सियत राजा सलीम खान के डेरा पर इफ्तार डिनर का शानदार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जी हाँ, जिसमें हर मकतबा फिक्र के अफराद ने शिरकत की है। इफ्तार डिनर में मेहमानों में MNA मुस्लिम लीग नून शेख आफ्ताब अहमद, साबिक MPA मिठू खान, सजादा नशीन दरबार आलिया सालिकाबाद शरीफ पीर आरिफ सुल्तान, चौधरी करम खान और कर्नल इशरत शामिल थे। राजा सलीम खान ने मेहमानों का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया। इसके अलावा इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की और प्रोग्राम का माहौल शानदार रहा। रमजान मुबारक के तीसरे अशरे के आगाज के साथ ही गुजरांवाला में जहां शहरी ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं, वहीं थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए खून की शदीद किल्लत को पूरा करने के लिए अफ्तारी के बाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा कयूम से। आज बिल्कुल रमजान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू होते ही गुजरांवाला के शहर में उनकी बड़ी तादाद ने आज शॉपिंग बाजार का रुख कर लिया है, जो कि शॉपिंग करते दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब थैलेसीमिया हीमोफीलिया फाइटर्स के बच्चों की जिंदगी बचाने में SP इमरान अब्बास सदर साहब अपना खुशी किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इस टाइम गुजरांवाला सिंध फाउंडेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर थैलेसीमिया हीमोफीलिया फाइटर्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें डोनर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि लोग आकर ब्लड के अतियात जमा करवा रहे हैं। और ये ब्लड कैंप का मकसद थैलेसीमिया हीमोफीलिया फाइटर्स बच्चों की जो ईद है उनकी खुशियों को दोबारा करना है। डोनर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि ब्लड डोनेट कर रही है। मेरे साथ इस टाइम SP इन्वेस्टिगेशन सरगोदा इमरान अब्बास सदर साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। अच्छा सर, ये बताएं, आज रमजान मुबारक में इतना बड़ा ब्लड कैंप का एहतमाम किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बहुत मुश्किल टाइम होता है जो रमजान मुबारक का खासतौर पे आखिरी अशरा, इसमें थैलेसीमिया फाइटर्स के लिए जो ब्लड होता है स्टॉक में वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो मुसलमान फास्टिंग की वजह से ब्लड नहीं दे पा रहे होते, तो बहुत मुश्किल टाइम होता है। इस मुश्किल वक्त में हमने जो मैंने पहले गुजारिश की है, पहले कॉल की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। और अगले दिन 8 दिन मुश्किल है, उन मुश्किलों को दूर करने के लिए हमारे दोस्तों ने जब रिक्वेस्ट की है, तो आपके सामने तकरीबन सैकड़ों दोस्त यहाँ ब्लड डोनेट करने आ गए हैं। और ये बड़ी खुश आइंद और खुशकुन उम्मीद वाली बात है थैलेसीमिया फाइटर्स के लिए, उन्हें इस मुश्किल वक्त में ब्लड मिल जाएगा और वो ईद पे खैर रहेगी, उनके घर में सलामती रहेगी और किसी सानिया से बच जाएंगे। तो मैं मशकूर हूँ गुजरांवाला के दोस्तों का, बेटों का, उन्होंने इस कॉल पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया है और सैकड़ों ब्लड बैग डोनेट कर रहे हैं। ये सिलसिला हमें जारी रखना चाहिए ताकि हम शेयरिंग करके अपने बच्चों की जिंदगी आसान कर सकें। बिल्कुल, जैसा कि आपने SP इमरान अब्बास सदर साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि हम ये जो काबिश है इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आप सबको भी चाहिए कि इन थैलेसीमिया हीमोफीलिया बच्चों को ब्लड डोनेट करें। मेरे साथ अता साहब मौजूद है, जिनकी खुसूसी काबिशों से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से, इतने बड़े ब्लड कैंप का? जी जज़ाकल्लाह, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इस काम के लिए चुना है। हमें और उसने क्यों चुना है, ये खुदा का ही फजल है। और मैं बाकियों को भी तहरीक करूंगा कि इस काम में आगे बढ़ें और इस नए काम में शिरकत करें। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि इस काम में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। और ये ब्लड कैंप का जो मकसद है वो थैलेसीमिया हीमोफीलिया बच्चों को ब्लड डोनेट करके, ताकि उनकी ईद की खुशियां जो है वो दुबारा हो और उनके वालिदैन के जो चेहरे हैं वो भी मुस्कुराएं। जी।
नाज़रीन, केपी के जिला मर्दान की तहसील तख्तपाई में वाक़ मदरसा गुज़िश्ता कई सालों से रमज़ानुल मुबारक में खूबसूरत दीनी रिवायत को बरकरार रखे हुए है। मदरसे के तलबा शहर और गिरदोनवा की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान कुरान करीम सुनाने की सआदत हासिल करते हैं, जिससे न सिर्फ कुरान करीम की तिलावत की महफिलें सजती हैं बल्कि नई नस्ल में दीनी शऊर भी उजागर होता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। मदरसा सिद्दीकिया तख्तबाई की बुनियाद सन 2004 में रखी गई थी। इस दीनी दरसगाह ने अपने कयाम से लेकर अब तक इलाके के नौजवानों की दीनी तरबियत और कुरान मजीद की तालीम में नुमाया किरदार अदा किया है। इस मदरसे से अब तक तकरीबन सैकड़ों की तादाद में तलबा हाफिज कुरान की दौलत से मालामाल हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ मसाजिद में इमामत और तरावी में कुरान सुनाने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। मदरसे के मोहतमिम कारी ज़ैनुल आबिदीन के मुताबिक गुज़िश्ता साल मदरसा सिद्दीकिया के तलबा ने तख्तबाई और गर्दनवा के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान मजमूई तौर पर 337 मरतबा कुरान मजीद का ख़त्म किया, जो इस इदारे की आलमी और दीनी खिदमत का वाज़िह सबूत है। इस साल जो मदरसे की कारगुजारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तख्तबाई की जो बड़े बड़े मसाजिद है उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा सिद्दीकिया के हफ़ाज़ कराम ने कुरान सुनाया। इसमें तख्तबाई की जामिया मस्जिद और कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के इलाके के मस्जिदों में मदरसा सिद्दीकिया के हफ़ाज़ ने कुरान सुनाया। और इस साल जो अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान को जो हमारा इस साल की इख्तितामी प्रोग्राम हो रहा है उसमें इस मदरसे की कारगुजारी भी होगी और बच्चों ने जो कुरान मुख्तलिफ मसाजिदों में सुनाया उनको हम मदरसे की तरफ से एक एजाज़ इनाम भी दिया जाएंगे इंशाअल्लाह। मुकामी लोगों के मुताबिक मदरसा सिद्दीकिया न सिर्फ कुरान की तालीम दे रहा है बल्कि नई नस्ल को दीन से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन मंसूर खान के साथ फैसल ज़ादा, टीवी टुडे न्यूज़ मर्दान। नाज़रीन, माह सयाम में सांगला हिल में इतर की मांग में नुमाया इजाफा हो गया है। रोज़ादार इबादत के दौरान रूहानी और कल्बी सुकून के लिए इतर की दुकानों का रुख कर रही हैं, जिससे कारोबार में भी तेजी आ गई है। रिपोर्ट करेंगे जुल्फ़िकार अली। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना, इस मुक़द्दस महीने में इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाता है, इसलिए रोज़ेदार रूहानी और कल्बी सुकून के लिए बेहतरीन इतर का इस्तेमाल करते हैं। इतर के ख़रीदार ने बताया कि इतरात के इस्तेमाल से इबादत में रूहानी सुकून मिलता है। इतर फरोख्त करने वाले दुकानदार का कहना था कि रमज़ान मुबारक के महीने में इतर की मांग बढ़ जाती है। साल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह अतर और परफ्यूम हमारे पास बहुत ज़्यादा सेलत है। अतर लगाना सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करना सवाब है। ये बाहर से आते हैं, दुबई, फ्रांस, इंडिया, और हमारे पास टोपी, तस्बीह, जय नमाज भी होती है। अतर लगा कर नमाज पढ़ने से बहुत सुकून होता है। इस तरह इसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं अतर के। अच्छे इतरियात इबादत में ज़ौक़ शौक़ बनाते हैं, इसलिए माह मुक़द्दस में इनकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। कैमरा टीम के साथ जुल्फ़िकार संधू, टीवी टुडे, सांगला हिल। रिपोर्ट आपने मुलायजा की। दूसरी जानिब शोरकोट में वज़ीर आला मरीम नवाज के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत गंदम की पैदावारी मुकाबला जारी हैं। तहसील भर के जीतने वाले 3 अफराद के नाम झंग भेजे जाएंगे। पंजाब भर में ये मुकाबला जात मुनक्किद किए जा रहे हैं और जीतने वालों को इनामात दिए जाएंगे। ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद सरवर ने कहा, इस इक़दाम का मकसद काश्तकारों में पैदावार बढ़ाने की हौसला अफजाई करना है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।